Hello everyone. Namaskar and good morning. Good morning, ma'am. After a long time we are meeting, right? बीच में मिनी वेकेशन आ गया था ऐसा लगा, right? Yes, ma'am. Like first in starting checking, then we got one period after this PA1 exam. How was your exam? Good? Good morning, Yes, Jenny. ma'am. Good. Okay, fine. Well done. So in upcoming exam will be on 30th September. I guess what is Monday? Yes, 30th September. And before this, not before this, but in this month, on 28, yes, 28 August हमें syllabus anyhow complete करना है, right? Because उसके बाद submission होगा and then it is PE1 exam, so that we require at least 15 days for the revision as per the instruction of management, right? Ma'am, So, when is the term 1 exam, I am talking about that only. 30th September, Monday. Ma'am, when will school open? That I don't know, beta. So we have only 1, 2, 3 and 4 periods to complete our syllabus. And how many chapters? Total 10 chapters. It means 5 chapters I am going to ask in term 1. Okay? So here we are going to learn chapter number 4, Introduction to Microsoft Access. Let's recap. I'm not taking your attendance. I will take your attendance in last because we don't have much time and we have to complete lots of things. So let's do quick recap. Introduction to Microsoft Access. How to open it? Any idea? Just ये स्कूल ओपन होने ही वाली थी, बट फिर से उन्होंने बताया कि now it is not open. Ma'am, can I? Let's try another student. If they don't know, then you will. Mayan, will you please tell me how to open Microsoft Access? Ma'am, can you repeat the question? Hello, anyone? Ma'am, can you repeat the question? Ashita? Anyone? If you don't know, then you can ask Ma'am, me. can you repeat the question? My question is how to open Microsoft Access in computer, because in last to last period we already learned about this. Ma'am, we have to go to attachment and then we have to do some Okay, start. I am clicking on start menu. Okay, then all program. It is Windows 7 beta. So that first I click on the start button and then this is Microsoft Office. Okay, in this Microsoft Access 2007. Okay? Understood everyone? Steps are given on page number 38. If you don't know, then you can see on page number 38. I'm just clicking on Microsoft Access 2007. Okay? Once I click on this, you can see this kind of screen will appear. From this, we have to choose this blank database. I'm clicking on this. Once I click on this, you can see blank database, file name and create. These options are available here. From this, you can write whatever name you want to give to file. अगर आप घर पे practice कर रहे हो तो database 1 name रखेगा, because if you are following textbook, then in textbook in this chapter, I mean chapter number 4 and chapter number 5, ये सब में database 1 करके ही mention किया है. यहाँ पे मैंने already practice की थी, इसीलिए ये 3 बता रहा है, because 1 and 2 मैंने आपके classes के पहले practice की थी. ठीक है? I am doing continue with database 3. If you want to rename it, then you can do it. देखिए मैं आपको rename करके बताती हूँ database base of the 3. Then create.
Once you click on create, you can see this kind of screen is appear. This screen is looking like Excel only. Let me do my brightness more so you are able to see properly. ठीक है? Excel की जैसे ही ये Excel का जैसा स्क्रीन होता है, सेम स्क्रीन आपको दिखेगी. बट ये मैं यहाँ कहीं पे भी क्लिक नहीं कर सकती हूँ. ठीक है? यहाँ पे मैं एरो की से ये मूव कर रही हूँ, तो लेफ्ट साइड मूव होता है, राइट साइड मूव नहीं होता है. ठीक है? Okay. Now we are going to learn creating a table. How to create a table. तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए दो चीजें जरूरी है. एक तो इसको हम बोलेंगे फील्ड नेम. देखिए हम ऐसा टेबल बनाने वाले हैं, पेज नंबर 45 में दिया हुआ है. ठीक है? लेट मी शो इन माय कंप्यूटर ओनली. Yes, we are going to make this kind of table. ठीक है? तो ये टेबल में क्या चीजें हैं? एक तो हेडिंग है. हेडिंग इज देयर, एडमिशन, नंबर, सरनेम, फर्स्ट नेम एंड अंडर रिकॉर्ड्स है. इसको हम फील्ड नेम बोलेंगे. ये सारे रिकॉर्ड्स है. ठीक है? तो पहले तो हमें ये सेट करना पड़ेगा कि हमें कितनी कॉलम्स चाहिए, उनके हेडिंग्स क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके अंदर का डेटाबेस चाहिए. तो टू टाइप्स की व्यूज होंगे, एक तो डेटा शीट व्यू एंड दूसरा डिजाइन व्यू. तो हम जो हेडिंग देंगे उसको हम बोलेंगे डेटा शीट व्यू. क्या बोलेंगे? डेटा शीट व्यू. अगर आपको डेटा शीट व्यू देखना है तो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 40 योर टेक्स्ट बुक, डेटा शीट व्यू. डेटा शीट व्यू में आप हेडिंग्स दे सकते हो. समवन्स माइक इज ऑन. ओके फाइन. Understood everyone? If we want to give field names, तो हम कौन से व्यू करेंगे? If we want to give field name, then this is called field name. Field name, it means heading of the columns. कौन सा यूज करेंगे? Please reply. Ma'am, the admission number, surname, first name, all, and which type of data they are all giving. Okay. Let me open this. Where it is? Yes, this here. You can see the icon of this is looking like key. ठीक है? Now, first of all, let me save this table. ठीक है? ये टेबल मैं सेव करने जा रही हूँ. That options are given on page number 41. Where it is? Views you can change from here. देखिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हो. Once I click on view, मैंने जैसे ही व्यू पे ऊपर क्लिक किया, they are asking to save. चलिए टेबल 1 से ही हम कंटिन्यू करेंगे. So in which view we are now? हम अभी कौन से व्यू में हैं? डेटा शीट व्यू में. जी, डेटा शीट व्यू. ठीक है? नाउ गो ऑन पेज नंबर 42, 43. ठीक है? ID. First of all, I am typing admission number. In last period, I told you, you have to make it and then mail me. So मुझे ये सारी चीजें टाइप ना करनी पड़े. Now I am in data sheet view. I am clicking on design view. Once I click on design view, you can see field name. What field name do I have to give? Design view में आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 देखना है. ठीक है? एडमिशन नंबर. ठीक है? आई एम टाइपिंग दिस. एडमिशन नंबर ऑटो नंबर होना चाहिए. नो, इट्स टेक्स्ट. लेट्स गिव इट टेक्स्ट. डिस्क्रिप्शन आई एम नॉट टाइप. Auto number means auto number, it means we don't have to give 1 2 3 randomly. ठीक है? It's automatically taken. Suppose last time आपने 1 ऐड किया होगा या 255 ऐड किया होगा, 255. So अगर न्यू एडमिशन आता है then it's automatically taken by computer 256. If I add one more student, then it will automatically take 257.
समझ में आया? मैम आफ्टर दैट कैन यू डू प्रैक्टिकल ऑफ दैट ऑटो नंबर? हाँ जी, ऑटो नंबर देखिए मैंने यहाँ पे ऑटो नंबर सिलेक्ट किया है, ठीक है। नाउ यू आर एबल टू सी फील्ड प्रॉपर्टीज, आप दिख रहा है फील्ड प्रॉपर्टीज, उसमें लॉन्ग इंटीजर, इंक्रीमेंट, ठीक है, या फिर रैंडम। अगर आपको रैंडम नंबर डालना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो रैंडम नंबर। आई एम चूजिंग इंक्रीमेंट फ्रॉम हियर, मैम एंड देन टेक्स्ट अलाइनमेंट जनरल, ठीक है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको लेफ्ट चाहिए वगैरह, कोई नहीं, हम ऑटो नंबर रखते हैं, टेक्स्ट बुक में भले टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन आई एम नॉट टाइपिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक। फिगर नंबर 8 you have to see. Next is surname. Surname we are going to put text. Description I am not writing anything. First name भी text होना, ठीक है। Enter. Section. What is next section? Okay, section text. Okay. Next is DOE, date of birth. I mean, yes, date of birth. We have to select proper data type from here. ठीक है? Date and time. I'm choosing this one. ठीक है? And then enter. Then day scholar. Day scholar में yes or no? It means उन्होंने हाँ जी मैम आपका जो वो कर्सर है वो ब्लिंक क्या बेटा? वो आपका राइटिंग की जो लाइन है तो बेटा आपकी वॉइस नहीं प्रॉपर वॉइस आ रहा है आपका। फोन नंबर टेक्स्ट आई एम चूजिंग। बेटा आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है। माइट बी देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कम इन नेटवर्क और यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। आफ्टर फोन नंबर ट्यूशन फी, ओके, ट्यूशन फीस, उसकी डेटा टाइप क्या ली है इन्होंने? नंबर्स, ओके। हेलो मैडम, हाँ जी बेटा, ये जो फोन नंबर है ना, ये उन्होंने टेक्स्ट क्यों दिया होगा? What is what? हाँ जी बेटा, ये वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है। बस फीस में भी हम नंबर्स रखेंगे बिकॉज फीस अमाउंट हम नंबर्स में लेंगे। यहाँ पे फोन नंबर इनको टेक्स्ट नंबर्स में देना चाहिए बट इन्होंने टेक्स्ट में दिया है तो कोई नहीं। स्टूडेंट्स डिटेल, अच्छा आपको याद है मेमोज? We can add anything, characters, description. If you want to write, then we can use this. हाँ बेटा, photo. I'm not writing. OLE. ठीक है? Now your question is, what is OLE? I hope you understood this text. Now date and time is also you understood. Day scholar, it means yes or no. They are coming in day school or not, for this yes or no. अगर वो आते हैं then we have to click on yes check box, उसको check box बोलेंगे हम। अगर no है तो फिर no। फोन नंबर यहाँ पे नंबर्स देना चाहिए बट इट्स ओके, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए, बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ही दिया हुआ है। ट्यूशन फी एंड बस फीस यू कैन सी नंबर। नाउ स्टूडेंट्स डिटेल, हम मेमो स्टडी किया था हमने, आपको याद है मेमो? यस मैम, मेमो में डिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स की फीस लिख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ आप देख सकते हो मेमो। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इट मीन्स अल्फाबेट्स भी ऐड कर सकते हो एंड नंबर्स भी ऐड कर सकते हो एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज OLE? OLE, मीनिंग ऑफ OLE इज if you want to add some pictures, some graphs, some sound, some videos, then you can add by OLE, ठीक है? अगर कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हो, ये क्या हो गया? अच्छा जूम,
1 मिनट। सपोज आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि फेसबुक में मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ इसलिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, बिकॉज आई नो अभी तक आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया होगा। सपोज यू आर मेकिंग योर आईडी इन फेसबुक, तो जब फेसबुक में आप आईडी बना रहे हो तब जो प्रोफाइल पिक्चर है वो प्रोफाइल पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी गैलरी में से कोई फोटो इंसर्ट करने देगा। अब उसकी जगह सोचो कि कुछ ऐसा हो कि वहां पे आप फोन नंबर टाइप कर सकते हो। अगर आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हो तो आप फोन नंबर टाइप कर सकते हो या फिर कोई भी टेक्स्ट मैटर ले सकते हो। अगर जिसने फेसबुक डेवलप किया उन्होंने उनकी डेटा टाइप टेक्स्ट रखी होगी तो कितना ऐसा चीप लगता कि आपने क्लिक किया फिर आप डेस्कटॉप पे टाइप कर सकते हो। समझ में आया डेटा टाइप का मीनिंग? OL मीन्स पिक्चर। आपको अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें लिखा है कि यू हैव टू सबमिट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, बट आप अगर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी गैलरी या आपके फोटोग्राफ्स ओपन करने ही नहीं दे, तो उसका मीनिंग क्या होगा? उन्होंने गलत डेटा टाइप चूज किया है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। अभी समझ में आया डेटा टाइप OLE जेनिल? यस मैम। हाँ जी। नाउ Yes, ma'am. वेयर वी वाज ऑन पेज नंबर, ये आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 चैप्टर्स फिनिश हो जाने दो। कहाँ पे थे हम? यस, ऑन पेज नंबर 43। नाउ आई एम ओपनिंग पेज नंबर 45। प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट कौन से Ma'am. पेज में है? हाँ जी, पेज नंबर 43 वहाँ पे Ma'am, this is- प्राइमरी की कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। Subscription in Microsoft Office. क्या बेटा? Microsoft Access need a subscription in Microsoft Office. अगर आपने जब वर्ड एंड एक्सेस, अगर वर्ड एंड एक्सेल रेंडमली ओपन हो रहा है तो ये भी रेंडमली ओपन होना ही चाहिए, इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। No मैम, ठीक है, ये but मेरे आपके- में नहीं हो रहा। अच्छा, आप मुझे बाद में कॉल कीजिएगा, वी विल सी व्हाट हैपनिंग, वीडियो कॉल कीजिएगा, ठीक है। बट आज मेरा पूरा पैक है, लास्ट पीरियड नाइट भी फ्री है, आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है देन आई विल हेल्प यू, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू गिव प्राइमरी की। हमने डिस्कस किया था कि हमें कंपल्सरी कोई की तो प्राइमरी की देनी ही है, ठीक है, कि जिस प्राइमरी की किससे दे सकते हैं? बिलोंग इन चैप्टर नंबर 3, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। चलिए, अल्टरनेट की एंड कैंडिडेट की नहीं समझ में आता, इट्स फाइन। व्हाट इज प्राइमरी की? ट्राई टू रिकॉल इट, पेज नंबर 34, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 34, डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की। Ma'am, which is choosing यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, इट मीन्स उनके, सपोज मैं सरनेम की बात करूं, देन ईशा, व्हाट इज योर सरनेम? सुतारिया, ठीक है। तो आपके क्लास में वो सरनेम से दूसरा स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है। आपके फादर्स का नेम किसी और के साथ भी मैच हो सकता है, आपके फोन नंबर भी किसी और के साथ मैच, फोन नंबर तो भी फिलहाल नहीं मैच हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि आपका फोन नंबर एंड आपका एडमिशन नंबर, ये दो चीजें ऐसी है, ये दो चीजें ऐसी है कि जो यूनिक होगी, ठीक है, जो किसी के साथ मैच नहीं होंगी। बट दिस इज स्कूल लेवल, सो दैट फोन नंबर को हम प्राइमरी की नहीं बोल सकते। सो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एडमिशन नंबर, वी कैन कंसीडर एडमिशन नंबर एज अ प्राइमरी की। अगर आप यहाँ पे की देख सकते हो, आप की, ठीक है, अगर आपको इसको प्राइमरी की चूज करना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इट मीन्स इट इज प्राइमरी की। इसको अगेन क्लिक किया तो वो प्राइमरी की नहीं है। सिंपल, अगर आपको ये प्राइमरी की चूज करनी है तो आपको वहां जाके क्लिक करना है, नहीं करनी है तो चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी की है। क्या बेटा, वॉइस ब्रेक हो रहा है? मैम, ये प्राइमरी की हाँ जी, अगर हाँ फील्ड नेम को यूनिक बना देगा ना? हाँ जी, यूनिक बना देगा। नहीं, यूनिक नहीं बनाएगा, वी हैव टू चूज यूनिक प्राइमरी की।
कोई भी जो चीज हो हमारे, कोई भी जो फील्ड नेम हो हमारे पास, वो फील्ड नेम से जो यूनिक है उनको ही हमें प्राइमरी की चूज करना है. You can know, we cannot select more than one. Okay, now next is entering data in table. ठीक है, ये एक view है. ठीक है, now I am going to view, clicking on view. Do you must first save the table? Okay, yes. ठीक है, मैंने टेबल जैसे ही सेव किया, व्यू में जाके यहाँ पे डेट शीट में मैं जा रही हूँ. अभी मैं डिजाइन व्यू में हूँ. आई एम गोइंग इन डेट शीट. वंस आई क्लिक ऑन डेट शीट, आप देख सकते हो वो वाला टेबल बन गया जो एक्सेल में हम हेडिंग्स देते हैं वो. ठीक है, फिर अभी हम डेटा उसमें ऐड करेंगे. चलिए, एडमिशन नंबर हम 2-3 डेटा ही ऐड करेंगे. ठीक है, मैम इसमें फॉर्म नहीं आ जाता? फॉर्म बाद में आएगा बेटा, बाद में आएगा, बाद में. वो चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. ओके चैप्टर में नहीं. ओके, नाउ हाउ कैन वी ऐड डेटा. चलिए 255, या फिर हम अभी जो टेक्स्ट बुक में डेटा है वो ही कंटिन्यू करते हैं. अरे इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं. अगर आपको लेफ्ट साइड जाना है तो शिफ्ट टैब, अगर नेक्स्ट जाना है तो टैब. और एक बात कि आप माउस का यूज कम कीजिएगा, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट इंटरव्यू. आई वॉज गिवन माई फर्स्ट इंटरव्यू इन राजकोट. तो वहां पे मेरे इंटरव्यू में मुझे प्रैक्टिकल्स पूछे थे रिलेटेड टू दिस db.net. ठीक है, तो दे टेकन mouse. They was not providing me mouse at that time. I told I have habit to do work with the mouse, but it look very professional if you are using only keyboard. Then जो IT सेक्टर में होते हैं ना, वो सब माउस यूज ही नहीं करते हैं, because they know all shortcut keys कि जहाँ पे हमें माउस यूज करने की जरूरत ना पड़े वैसा. ठीक है, so if you want to go in next cell, then you have to click tab. ठीक है, एंड बैक. अगर आपको बैक आना है देन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट बैक. ठीक है, चलिए 15. अरे अच्छा, मेरा नंबर लॉक ऑफ था इसलिए 15, 20. अच्छा, I cannot write anything in this because I choose this as a primary key. No, we choose this is as ऑटो नंबर. ठीक है, ऑटो नंबर, इसलिए ये राइट करने नहीं दे रहा है. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 45 फिगर नंबर 12 वहां पे लिखा है 15, 20, बट आई एम नॉट एबल टू राइट एनीथिंग हियर. रीजन ऑटो नंबर. अब ये ऑटोमेटिकली नंबर्स ले लेगा. ठीक है, चलिए सर नेम में W, फर्स्ट नेम W, सेक्शन A, डेट ऑफ बर्थ. सी, मैंने जैसे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक किया, आर यू एबल टू सी दिस स्मॉल आइकन? अब दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल आइकन. आई कैन चूज डेट फ्रॉम दैट. ठीक है, या फिर आई कैन टाइप इट फ्रॉम हियर. 15/07/2001. ठीक है, एंड देन डे स्कॉलर मैं यहाँ पे चेकबॉक्स यस कर देती हूँ. मैंने वो डेटा टाइप चूज की थी, सो दैट दे आर शोइंग यस और नो. नाउ फोन नंबर, आई एम राइटिंग एनी. इफ यू आर राइटिंग 9 डिजिट नंबर, इफ यू आर राइटिंग टेक्स्ट, तो भी ये ले लेगा, बिकॉज वी यूज डेटा टाइप टेक्स्ट. ट्यूशन फी 25,000, बस फी 10,000. ठीक है, स्टूडेंट डिटेल, I'm writing student detail www. Photo, yes. The OLE object is empty. You can't edit. Bound object frame is not blank. Insert object. देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, राइट क्लिक. ठीक है, then insert object. I'm clicking on this. Create a new
क्रिएट फ्रॉम फाइल्स, चलिए फाइल्स में से देखते हैं ब्राउज करके कोई इमेज कास्ट पड़ी हो मेरे पास। डेस्कटॉप, नो पिक्चर इज देयर। यस, लोटस टेम्पल विकिपीडिया, ठीक है। आई एम टेकिंग एनी पिक्चर, आई एम टेकिंग दिस स्टार, ओके, ठीक है। यहाँ पे पैकेज लिख के आ गया है, सो आई इंसर्टेड दिस वेयर आई एम। अच्छा, अंडरस्टूड। सी वन इज ऑटोमेटिकली केम हियर। नाउ W की जगह हम टाइप करेंगे Q, टैब Q, सेक्शन B, 2 sections are there, ठीक है। फ्रॉम हियर आई कैन ऑल्सो एड, ठीक है। Let me try to write wrong date, I mean wrong format. I'm writing 20 and then tab. See, they are showing you the value you entered does not match the date and public time. Data type in this column. ठीक है, enter a new value or convert the data in this column to the text data type. या तो मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ या फिर एंटर न्यू वैल्यूज में न्यू वैल्यूज एंटर कर दे रही हूँ। अभी मैं टैब के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, टैब के ऊपर, तो वो मुझे मूव ही नहीं होने दे रहा है। रीजन, बिकॉज मैंने गलत डेटा टाइप किया था इसलिए। एंड अगर मुझे यहाँ पे जाना है टैब करके तो भी मैं नहीं जा सकती। हाउ मेनी टाइम्स आई एम प्रेसिंग टैब देन ओनली, सी इट मीन्स रॉन्ग डेटा टाइप इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। 2205 एंड देन 2002, 02 मैंने टाइप कर रही हूँ, ठीक है। इट्स ऑटोमेटिकली टेकन। डेटा स्कॉलर हम यस रख रहे हैं। फोन नंबर 0123456789, ठीक है। 20,000, सबकी फीस तो सेम ही होती है, 10,000 दिस फी एंड www की जगह q and photo, yes photo. I am repeating this. Right click, insert object from this, create from file. अगर आपके पास कोई शीट में ऑब्जेक्ट है तो आप वो भी टाइप कर सकते हो, बट आई एम क्लिकिंग हियर एंड देन ब्राउज एंड देन लवली लोटस, दिस आई एम टेकिंग। यू हैव टू टेक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ दिस ऑल, ठीक है, एंड देन ओके, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ उन्होंने ले लिया। अगेन टैब, see 2 is automatically came here because we use data type। कौन सी यूज की थी अगत्य आपके कहने पर? ऑटो नंबर, हाँ जी। नाउ E सेक्शन अगेन A एंड देन डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पे क्लिक, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो देखना आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना तो आपको वहां से भी वो एक्सेस करने देंगे डेटा, ठीक है। यहाँ से मिनी कैलेंडर आ गया। हाँ, मिनी कैलेंडर, हाँ वो आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे ना उसमें ऐसा ही होगा। अगर आप फेसबुक में आईडी बना रहे हो, इंस्टाग्राम में तो ये फैसिलिटी नहीं है, बट इफ यू आर मेकिंग आईडी इन फेसबुक तो उसमें भी वो आ जाएगा। बिकॉज अगर सोचो कि ये वो लोग ये डेटा टाइप DOB ना ले, तो अगर हम किसी का भी फेसबुक प्रोफाइल देखें उसमें कुछ भी लिखा हो DOB, उसमें डे लिख दिया हो, फिर इसमें फोन नंबर लिख दिया होगा, इसलिए उन लोगों को ये प्रॉपर करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं टाइप ही कर रही हूँ। (21) की जगह 01 कर देते हैं हम। डे स्कॉलर इसका नहीं रखते हैं। फोन नंबर में रेंडमली कोई भी फोन नंबर टाइप कर रही हूँ, 25,000, 10,000। कौन सा E अल्फाबेट लिया था हमने? अगेन फोटो, क्लिकिंग इंसर्ट ऑब्जेक्ट, create from file, browse. Once you click on browse, you can see clicking this one and then okay. ठीक है। Again I am repeating. See, it's automatically taken. Now next R section again B, date of birth,
2002 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चेक डे स्कॉलर, यस। फोन नंबर 25,000। This is the detail and photo, right? Please. Janine, now understood what is OLE? Create new bitmap image. Okay. ठीक है, now you can create this bitmap image also. अगर आपको यहाँ से कुछ क्रिएट करके वो ऐसे लेना है, Control S and then close. ठीक है, हमने जो ब्रश पेंटिंग किया था ना, वो पिक्चर ले लिया है। बस इतना डेटाबेस इनफ है नाउ। नाउ लेट्स सी व्हाट दे हैव गिवन। टिल पेज नंबर 46 हमने कर लिया, ठीक है। आई थिंक वी नीड टू ऐड मोर डेटाबेस बिकॉज यहाँ पे उन्होंने डिलीट के लिए भी बोला गया है, तो if we do work with the delete then we need more database. मैम कॉपी पेस्ट कर दो। क्या बेटा? कॉपी पेस्ट we can do। इसका पिक्चर मैंने नहीं लिया, ठीक है। राइट क्लिक, ओके। नाउ एनी डाउट इन दिस? अब कुछ स्टोरी ऐसे होती है कि नाउ मूव ऑन पेज नंबर 47। पेज नंबर 47। हाँ जी, बोलिए बेटा। मैम, इस तरह limit for data in this? No limit. You can enter any number of data in this. मैं आपको बता दूं, ये जो ऑल ओवर गुजरात का आधार कार्ड का डेटा होता है ना, आधार कार्ड, उसका डेटाबेस इसी तरीके से स्टोर हुआ होता है। या तो फिर उन्होंने ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज किया है, डेटाबेस एक्सेस, या फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे ये होते हैं, डेटाबेस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। लेट मी गिव द नेम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। इसके रिलेवेंट माइक्रोसॉफ्ट, ये 5th स्टैंडर्ड में आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, फोक्स प्रो एंड ओरेकल। यस अगस्त्य, राइट। आई एम रिपीटिंग दिस। Microsoft Access, OpenOffice Base, Fox Pro and Oracle. This all are the database software, but Microsoft Access is very well-known software because we can manage data in this easily, and Microsoft easily crack version उसका available है, right? तो ये relevant software है, तो ये 3-4 सॉफ्टवेयर में से उन्होंने कोई एक सॉफ्टवेयर यूज किया होगा डेटाबेस पूरे इंडिया का मैनेज करने के लिए। सेम टू सेम इट्स हैपन विथ वोटर आईडी, सेम टू सेम इट्स हैपन विथ ये जो कोविड, आपने तो वैक्सीनेशन नहीं लिया होगा, बट जिन्होंने लिया है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हमारे पास अगर स्लिप वो खो जाए कि हमने कब इसका रजिस्ट्रेशन किया था, कब हमने वैक्सीन ली थी, वैक्सीन लेने के बाद मेरे फादर गए थे तो उसके पास एक भाई थे, उसके पास स्लिप नहीं थी वैक्सीनेशन की डेट की कि कब ली थी, बट अगर आपको पता है तो उनका सेकेंड डोज आफ्टर 85 डेज लेना होता है कंपल्सरी। 85 डेज से कम डेज में यू कैन नॉट टेक वैक्सीन सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन। तो वो भाई 2 आवर्स तक लाइन में खड़े रहे, फिर उसका टर्न आया, उन्होंने बोला मेरा ये नाम है, आई वॉन्ट टू टेक अ सेकेंड डोज ऑफ दिस। फिर उनके पास वो डेटाबेस था, तो उन्होंने चेक करके बोला कि आपने ये डेट को वैक्सीन ली थी, ये एरिया में से, ये विलेज में से वैक्सीन ली थी, तो 85 डेज कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम है, तो आज हमको वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। तो ये किसका कमाल है? डेटाबेस का, बिकॉज उन्होंने कहीं और से लिया था, फिर भी उन्होंने प्रॉपर डेटा मैनेज करना रखा। हाँ जी, नाउ जेनिल, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मयान, व्हाट इज योर क्वेश्चन? प्लीज आस्क मी।
So we can manage proper data by using this software. Yes, Mayan, क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? Hello, Janil. Do you want to ask anything? No, ma'am. All clear. All clear? Okay. So now let's move on page number 47. Insert a field. They are asking about field. Now, can anyone tell me what is field and what is record? We studied in chapter number 3. Field क्या होती है? And record क्या होता है? Let me tell you, this is known as record, and the admission number is known as field. Yes, absolutely right answer. On page number 28 you can see. ये मैंने बार बार रिपीट इसीलिए किया था वो चैप्टर में, so that you can remember this. This column headings are field and entries are called record. ये entries है उनको हम record बोलेंगे, ये headings है उनको field बोलेंगे. Now suddenly I realized कि मुझे इसमें और कुछ भी ऐड करना था. जैसे कि आप आइडियाज दीजिए क्या और ऐड कर सकते हैं? You can add what? See, these are the columns name, right? Field names, the admission, surname, father's name. Yes, Father and mother. I forgot to add. I forgot to add mother's name. Right? If you are studying in school, then school must have a data of your mother. So if I want to add this, then I can add it from here. देखिए मैं यहाँ पे मूव करके यहाँ पे ऐड फील्ड करके यहाँ पे भी ऐड कर सकती हूँ एम नेम, ठीक है, एंड देन एंटर. जैसे ही मैंने एंटर किया आप यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हो. ये क्यू सरनेम वाला जो भाई है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे आर एस टी पी, ठीक है. So you can edit from there also, and यहाँ पे व्यू में जाके डिजाइन में जाके भी ऐड कर सकते हो मदर नेम, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया. बट आपने अगर वहां से ऐड किया हो, ओके मयान, नो प्रॉब्लम, ठीक है. अगर आपने वहां से ऐड किया है डेटा शीट में से, देन यू कैन नॉट सिलेक्ट डेटा टाइप. एंड बाय डिफॉल्ट ये कौन सी डेटा टाइप ले रहा है? बाय डिफॉल्ट ये कौन सी डेटा टाइप ले रहा है? टेक्स्ट. आपने नोटिस किया? पर्सनल फोन नंबर मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से. एंड लेट्स चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस पर्सनल फोन नंबर. कहाँ से करेंगे? व्यू में जाके यहाँ से टेक्स्ट. बट इफ यू वांट टू चेंज डेटा टाइप, देन यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर, नंबर, ठीक है, एंड देन टैब. अगर आपको कोई फील्ड, इफ यू वांट टू ऐड एनी फील्ड, क्या बेटा? मैम ये सबसे पहले हम ऐड नहीं कर रहे के नेम वहाँ ले जाओ वहाँ से कैसे इधर आने का? यहाँ व्यू, दो ऑप्शन है व्यू. देखिए मैं पूरी स्क्रीन दिखा रही हूँ. अगर आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन टू टाइप, यहाँ दो ही चीजों का कमाल है पूरा, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू. वंस यू क्लिक ऑन डेटा शीट व्यू यू कैन सी एंट्रीज आर हियर, एंड वंस यू क्लिक ऑन डिजाइन व्यू यू कैन सी फील्ड नेम्स, हेडिंग्स आर हियर, ठीक है. दो ही टाइप है, दो ही चीजों का कमाल है, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू, ठीक है, डेटा शीट एंड डिजाइन. अगर आप कुछ और भूल गए हो कि पर्सनल फोन नंबर, चलो मदर्स फोन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नंबर्स डाल रहे हो, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग इन डिजाइन व्यू, सॉरी डेटा शीट व्यू. वंस आई क्लिक ऑन दिस दे आर आस्किंग टू सेव. ये अच्छा ऑप्शन है, वरना हर बार भूल जाते हैं सेव करने के लिए. तो यू कैन सी, अरे यू कैन सी हियर मदर फोन नंबर भी यहाँ पे ऐड हो गया, देख रहे हो आप? यस मैम. ठीक है. नाउ आई एम राइटिंग सम टेक्स्ट देयर. मैंने मदर्स फोन नंबर में क्या रखा था डेटा टाइप, अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे नंबर्स लिखे थे, इफ यू रिमेम्बर देन, ठीक है. तो नाउ आई एम टाइपिंग अल्फाबेट,
मैं अल्फाबेट टाइप करके एंटर करने की ट्राई कर रही हूँ। The value you entered is not the number data type in this column. ठीक है, तो अगर आप भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें आप नंबर की जगह टेक्स्ट मैटर टाइप करके फॉर्म सबमिट कर सकते हो। देन दे चूज रॉन्ग डेटा टाइप, उन्होंने डेटा टाइप रॉन्ग चूज किया है। मेजोरिटी ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप पूरा फॉर्म सबमिट करने की ट्राई करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, क्या आएगा? The field you entered that is wrong. Understood? Invalid, yes, that word they use. And sometimes you can do that kind of things also if you are submitting any form. And अगर आपने Amazon में से online shopping कर रहे हो suppose, and you are adding your personal detail like address and phone number and etc. But you skip one line. Suppose you skip phone number and phone number is necessary to reach that parcel at your home. तो फिर आप submit पे click करेंगे तो वहाँ पे star करके कुछ line लिखी हुई आ जाएगी. That kind of things we can do from here. That we will learn in next chapter. उसको हम बोलेंगे query. क्या बोलेंगे? Query. उसमें हम इस टाइप की क्वेरी जनरेट करेंगे कि सपोज इफ यू आर सबमिटिंग एनी फॉर्म, इन दैट फॉर्म यू आर गिविंग इनपुट 11 डिजिट फोन नंबर। अगर आप 11 डिजिट फोन नंबर इनपुट करते हो देन वो फाइल सबमिट नहीं होने देगी। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो मदर्स फोन नंबर में मैं 2 डिजिट डाल रही हूँ 25 एंड देन गिविंग टैब, तो भी उन्होंने डेटाबेस ले लिया। देखा आपने? नोटिस किया किसी ने? आई एम टाइपिंग 0 एंड देन गिविंग टैब और एंटर और एरो की, देन 0 दे आर एक्सेप्टिंग। एक और इसमें करना पड़ेगा, मींस नंबर 10 डिजिट से कम होंगे तो नहीं एक्सेप्ट कर। जी हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, वो हम ये लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वी हैव टू डू लाइक दिस, कुछ ऐसा करना होगा। बट दैट थिंग्स वी हैव टू डू इन कंप्यूटर लैंग्वेज, वी हैव टू डू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लैंग्वेज एंड दैट इज कॉल्ड क्वेरी। ठीक है, वी हैव टू टाइप सम काइंड ऑफ क्वेरीज। अच्छा चलिए अभी ये कंप्लीट करते हैं। इंसर्ट फील्ड, हमने अभी क्या सीखा? इंसर्ट फील्ड। Can anyone tell me if I want to see another view, then where I have to click? Ma'am, on I the have view. to. No, suppose if I want to add here ki birthplace. Yes, birthplace. If I want to add, then where I have to go? There are 2 options. First, I can write it from here. Add new field, but by default they will take text. And second option is we have to click on view. Once you click on view, you can see 4 options are here. From this, we have to choose design view. Okay, once you click on design view, you can add. क्या add करना था? Birthplace. Yes. Birthplace. ठीक है, अगर मैं birthplace में यहाँ number type कर दूँ तो data type. If you write any text matter, then it will not accept. Understood? Yes, one more thing. Let me show you one more thing. Yes, tuition fee. Tuition fee. 1 minute, Agastya. Tuition fee. I am choosing currency. जैसे ही मैंने currency choose की, डेटा शीट में हम जाएंगे तो वहाँ पे रुपीज आ गया। देखिए, मैंने आपको एक्सेल में भी सिखाया था। Are you able to see it? Yes, ma'am. Yes. ठीक है? And this type you can insert any field. Now I'm going to delete any field. Suppose if I don't want mother's phone number in this or personal phone number is in this, then do just right click, select this, do right click and delete rows. Once you delete rows, you can see they are again asking, do you want to delete this permanently? Yes. ठीक है, now let's see in data sheet view. क्या डिलीट किया था? पर्सनल फोन नंबर. सो यू आर नॉट एबल टू सी पर्सनल फोन नंबर फ्रॉम देयर. यू कैन डिलीट इट फ्रॉम हियर आल्सो आई गेस. डिलीट कॉलम. ठीक है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, जैसे हम एक्सेल में करते हैं वैसे यहाँ पे करना है। ठीक है, सो वी लर्न अबाउट इंसर्ट फील्ड एंड डिलीट फील्ड. नो, ओनली डिलीट फील्ड.
let's discuss about the insert record. Yes, यहाँ पे by mistake मैंने एक रिकॉर्ड ऐड नहीं किया है, वो यहाँ पे ऐड करना था मुझे, कि ये जो 4 नंबर का एडमिशन है वो एंड 5 नंबर के एडमिशन के बीच में एक और एडमिशन आया था, बट आई फॉरगेट टू ऐड दैट एडमिशन. सो आई एम जस्ट डूइंग right click new record. Once I click on this new record, you can see you can add new record from here. अच्छा, लास्ट में ही ऐड करने दे रहे हैं. Let me see in textbook page number 47. Right click on the corner cell of the left of the admission number. Okay. Left of the admission number. ठीक है. Sorry, मैंने गलत किया था. यहाँ से करना है. New record. अच्छा, वो लास्ट में ही आ रहा है. Type a new record entry in table after the last enter record. ठीक है. ये लास्ट में ही ऐड करने देगा because See, अगर से हमने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नहीं किया था, वी चूज एडमिशन नंबर एज ऑटो नंबर. तो अगर एक बार ये ऑटो नंबर जनरेट हो गया फिर वो डिलीट नहीं होने देगा. अगर मैंने ये 4 नंबर की एंट्री है, सरनेम आर वाली एंट्री, इफ आई डिलीट दिस देन इट विल नॉट टेक 4 नंबर एनीवेयर. आर यू गेटिंग व्हाट एम आई टेलिंग टू यू दैट? सपोज लेट मी शो यू. देखिए, मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड करने की ट्राई की, ठीक है, तो वो 3 नंबर मैंने डिलीट किया. फिर ऑटो जनरेट नंबर में भले आपने 3 नंबर डिलीट किया होगा बट वो रिपीट नहीं होने देगा. ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, हमने अलग से किया था. अंडरस्टूड इट? बाकी रैंडमली कोई भी नंबर आप डाल सकते हो. Yes, ma'am. ठीक है. आई एम ट्राइंग टू टाइप 3. मैं यहाँ 4 की जगह 3 टाइप करने की ट्राई कर रही हूँ, बट डेटा इज नॉट एक्सेसिंग बाय कंप्यूटर. ठीक है, एनी डाउट? अच्छा, डिलीट रिकॉर्ड वी ऑलरेडी लर्न अबाउट डिलीट रिकॉर्ड. इफ यू नो डाउट. अच्छा मयान, आप अभी तक हो क्लास पे? आपका तो फोन डेड हो गया था ना? मैम क्यों, मजा आ रहा है? चार्ज करके वापस आ गए. ओके, ठीक है. Can I call you after class? Janil, you can call me. Do you have a free period? बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जेनिल, अगर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ पूछ रहे हैं तो आपको उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड ही मांगेंगे, वो ही आपको देना होगा. If you don't have your personal email ID, then you can use your father's email ID and password. ठीक है? Okay. I have Microsoft account. You have Microsoft account, then you can use that account. Rest all students, if you don't have any doubt, then you can leave meeting. Attendance का क्या करेंगे अभी? ठीक है, चलिए, मुझे नहीं याद है. भी इसके बाद के क्लास का क्लास कैंसिल है, इसलिए सोचा थोड़ा सा चार्जिंग कर ले तो बाद में चार्जिंग में रख दूंगा. आपके बाद के क्लास आज कैंसिल है तो ठीक है, बट मुझे नेक्स्ट क्लास है. हाँ मयान? ठीक है मयान? हाँ मैम, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैंने अभी थोड़ा सा चार्ज करके ज्वाइन हुआ हूँ. अब बाकी का जो 1 घंटा उसमें चार्ज कर लूंगा. ओके. मुझे लगा आपको कंप्यूटर में बहुत मजा आ रहा है तो आप ऐसा बोल रहे हो कि मैम नेक्स्ट 1 आवर भी आप कंटिन्यू कीजिए. चलिए फटाफट अटेंडेंस भेज दीजिए रोल नंबर वाइज. 1 to 10 फर्स्ट, क्विकली. 7 ओके. 6 okay. Today's homework you have to do practice this at home and then mail me this data table. अच्छा, सेव करना तो हमने सीखा ही नहीं. नॉर्मल फाइल सेव करते हैं, you have to save like this only. 4, 16, 18. Wait 1 minute. 16, 18, 23. Okay. 11 to 20, send your roll numbers quickly. Breshi 5 number. Ma'am, can you tell me roll number? Lakshya, 1 minute. Lakshya Patel.
न्यू एडमिशन अच्छा लक्ष्य 22 रोल नंबर आई हैव कंफ्यूजन ओके बेटा मैम हाउ टू सेव एंड फॉरवर्ड टू यू ओके 25 present okay beta 21 and onwards don't send 2 times please 25 29 Tirsak is also present 27 Milan is also present Lok is absent beta what is your roll number 8 22 okay 29 25 okay now save simple you have to go in file and then save understood try to remember the name of this database tree we have given okay and yes Janil you stay here rest all students if you don't have doubt then you can leave this meeting ma'am can I leave my charging if yes you can rest all students please leave this meeting Janil show me your screen computer screen quickly bye have a nice day Janil are you here Ma'am, please make me present. Yes, ma'am. show me your computer screen quickly Ma'am, you have not met me yet. what Presenter, how can I share screen, ma'am? how can you share screen you can do your camera on and then show me computer screen screen sharing wala nahi bol rahi hu Ma'am, I am from laptop only. acha you are from laptop only Yes, हाँ जी। ma'am. 1 minute 1 minute I am making you presenter और co-host ठीक है Okay, चलिए ma'am. अभी अभी हुआ देखिए तो Visible, ma'am. no it is loading हाँ जी Now, ma'am. हाँ जी it's visible बेटा Microsoft Access अच्छा it is not available in your computer बेटा Microsoft Whiteboard Yes, ma'am. click on start button आप start button के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पे यहाँ स्टार्ट This बटन one जो है ना वहाँ पे नो 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 स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है देखिए मेरे कंप्यूटर Ma'am, you में can यहाँ take request control. सॉरी You can Yes, control yes. on my computer and tell me, ma'am. नो आई कैन नॉट कंट्रोल योर कंप्यूटर बिकॉज आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम द मोबाइल अगर मैं कंप्यूटर यहाँ से एक्सेस कर सकती हूँ कंप्यूटर में से क्लास ले रही हूँ देन ओनली आई कैन डू नाउ गो एम के पास चले जाओ जल्दी जल्दी एम 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 ए बी सी डी एफ जी हाँ नीचे ड्रैग करते जाओ स्क्रॉल करते जाओ ए बी सी डी एस एम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐसा कुछ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐसा कुछ है ये जो एक्सेस है ना वो आप नहीं ये जो एक्सेस है ना वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है ठीक है तो किसी के पास आप MS ऑफिस का बैकअप So लेके how उनको can I इंस्टॉल do कर that? सकते हो आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके Okay, कोई एल्डर okay. ब्रदर सिस्टर है तो उनसे लेके ठीक है बिकॉज वो जब आपने यहाँ पे Okay. टाइप किया था ना यहाँ क्या बोलते हैं उसके कॉर्टाना में जब आपने टाइप किया था ना यहाँ पे तब आप जब टाइप कर रहे थे तब वहाँ Yes, पे ma'am. ये जो फिर से टाइप कीजिए मैं बताती हूँ
1 minute, ma'am. You have to make me again. अगेन ओके। अच्छा मैं आपको रैंडमली बता देती हूँ कि मैंने जब वहां पे टाइप किया था ना तो वो ऐसा राउंड एंड देन लाइन ऐसा सिंबल दिखा रहे थे। इट मीन्स इट इज नॉट अवेलेबल इन योर कंप्यूटर। ठीक है, अगर वो जैसे आप एक्सेल टाइप करेंगे तो वो एक्सेल का आइकन एंड एक्सेल वो दिखाएगा, बट अगर आपके कंप्यूटर में वो नहीं है तो वो ऐसे करके सिंबल आएगा उसका। ठीक है, जैसे मैं टाइप कर रही हूँ। मैम कैन आई डू दिस ऑनलाइन? हाँ अगर अवेलेबल हो मैं चेक कर लूंगी, अगर ऑनलाइन है तो लिंक भेजूंगी, आप अपने तरीके से भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बट ये हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तब हो ही जाता है इंस्टॉल। आई विल चेक इट अगेन, डोंट वरी। ठीक है, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको याद रह गया उसका सिंबल कैसा होता है वो? यस मैम। की पिंक कलर का की वाला सिंबल है। ठीक है, आई एम यूजिंग आउटडेटेड वर्जन 2007, यू कैन इंस्टॉल 2010। ओके बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। ओके मैम।